Hello everybody. Today we will be doing yet another poem of class 10, the ball poem. Well, this ball poem is written by John Berryman. So before I start the line by line explanation, I'd like to give a brief summary of the poem. That one boy is there, is playing with the ball near the water harbor, and mistakenly the ball comes out of his hand and it goes into the water. The poet is standing there, he watches everything. Though the poet wants to help the boy, but he doesn't help. Why? Because he wants the boy to learn his responsibilities, his values. What value the poet is talking about? Values. What they can be? That in this world of possessions, we will be losing. We will have to sacrifice so many things, and we have to live with that pain. And secondly, why he was playing? Why playing near the water? If you're playing near the water, there are chances that you will lose the ball. It will go in the water. And secondly, that in this life we have got so many relations, we have got so many materialistic things, but sooner or later we will be losing those things, and we have to live with that pain. So these things the poet has beautifully described in this poem, the ball poem. Now, let us start the poem. What is the boy now who has lost his ball? What is he to do now? Now, for timing, just don't read this line. Remove this, now read it. What is the boy now is he to do? अब वो लड़का क्या करेगा? अब वो लड़का क्या करेगा? कौन सा लड़का? Lost his ball. Now the boy who has lost his ball, what he will be do? I saw it go. Now this I stands for the poet. The poet saw it go. Where and how? Merrily bouncing down the street and then merrily over. There it is in the water. The ball was going. The author saw merrily bouncing. Now, normally merrily word is used for happiness for the kids. But here, a happy mood he wants to create, like the ball is bouncing, like up and down is bouncing. And down the street means it's going down the street, it's crossing the street, and then what? And then merrily over. It crosses the street and goes into the water. Now, quickly let me explain this 4 lines once again. Now, the boy who has lost the ball, what is to do now? And the poet says, I saw everything. I saw that the ball was bouncing merrily down the street and it went into the water. Now the poet says, no use to say. No use to say. यानी कि कहने में कोई फायदा नहीं है. There is no use to. ये use to मतलब फायदा नहीं है. क्या? Oh, there are other balls. Very very important line. Poet says कि ये कहने में कोई फायदा नहीं कि और भी बहुत सारी बॉल है. और देयर आर अदर बॉल्स. ये बॉल चली गई तो क्या मार्केट में और बॉल मिल जाएगी, लेकिन ऐसा कहने में कोई फायदा नहीं है. एनीबॉडी व्हाई? ऐसा फायदा क्यों नहीं है? बिकॉज वी ऑल हैव emotional attachment with so many things. Maybe the boy was playing with this ball for many years. Maybe his father or mother, somebody has gifted it, so he had got an attachment.
So the poet says इसमें कहने में कोई फायदा नहीं कि और भी बहुत सारी बॉल है. And what is the condition of that boy at that moment? An ultimate shaking grief fixes the boy. Ultimate shaking grief. उस लड़के पे एक दुख हावी हो जाता है. Is very very sad. As he stands rigid, trembling, staring down all his young days into the harbor. All his young days. Please underline this. All his young days. Now the poet says that there is no use of saying there is another ball. An ultimate shaking grief fixes. Now the boy was standing, he was playing with the ball went, and he's staring at that ball, and ultimate shaking grief. वो मतलब इतना दुखी हो जाता है. As he stands, rigid मतलब without any motion, stiff, staring down, वो घूर के देख रहे हैं कहाँ पे? Where his ball went. Now this line, all his young days into the heart. Now he has been playing with the ball for so many years or so many months that it has been emotional attachment with the ball. He has got so many memories with the ball that is all those memories of all his young days into the harbor. यानी सिर्फ वो बॉल माने नहीं है, उस बॉल के साथ जितनी भी उसकी मेमोरीज थी वो भी उस पानी में जा चुकी है. और इसीलिए वो लड़का रिजिड खड़ा होकर घूर के देख रहे हैं, स्टिफ हो चुका है वो. His ball went, I did not intrude. Where his ball went, जहां उसकी बॉल गई थी वहीं पे उसकी यंग डेज भी चले गई, यानी कि उस बॉल के साथ जो उसकी मेमोरीज थी वो भी चली गई. Now the poet says, I don't intrude on him. Intrude का मतलब है interfere. और मैं सब कुछ देख रहा हूँ, but I will not interfere in his that state of mind. A dream, another ball is worthless. Dream is a currency. Worthless ball. Now if you see this line, it means कि dream means एक ball है जिसकी कीमत ज्यादा नहीं होती. Anybody can buy, his father, his mother could easily buy that ball, but that ball is worthless. उस बॉल की कीमत कुछ नहीं है. कीमत इन द सेंस कि वो बॉल आ भी जाती है तो वो बॉल उसके लिए कोई मायने नहीं रखती, बिकॉज वी हैव टोल्ड यू दिस. उसकी सारी मेमोरीज उसी बॉल के साथ थी. सपोज somebody give you a gift, your mother or father or your friend or somebody give you a gift. अगर वो टूट जाता है, गुम हो जाता है, you will be saddened. Okay, it's very easy to buy another ball, but कहीं ना कहीं उस बॉल के साथ आपकी अटैचमेंट होती है. इसलिए ऑथर कहते हैं कि बॉल की कीमत ज्यादा नहीं होती लेकिन वो वर्थलेस है. नाउ वी मूव टू द नेक्स्ट stanza. Now he senses first responsibility. In a world of possession. Now this word possession means own, to own something. So the author says कि अब जब वो बॉल गुम हो चुकी है, वो उस पानी में उस बॉल को देख रहे हैं, तो ही इज लर्निंग ए लेसन. ये जो दुनिया है ना, ये दुनिया जिसमें सबके पास ओन करने की कंपटीशन है कि मेरे पास ये चीज है, मेरे पास, इट्स सिंपली सेइंग मटेरियलिस्टिक थिंग्स. तो ऐसी दुनिया में ही इज लर्निंग हिज फर्स्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी. फर्स्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है? अपनी चीजों का ध्यान रखना. वो उस लड़के की रिस्पॉन्सिबिलिटी. अगर वो उस पानी के पास नहीं खेलता तो बॉल कभी नहीं जाती पानी में. इसलिए वो पहली रिस्पॉन्सिबिलिटी लर्न कर रहा है. इसलिए ऑथर कह रहे हैं कि मैं इंट्रोड्यूस नहीं करूंगा, मैं उसके इस मोमेंट में इंटरफेयर नहीं करूंगा. पीपल विल टेक बॉल्स विल बी लॉस्ट ऑन दिस लिटिल बॉय. मतलब लिटिल बॉय, पीपल विल टेक बॉल.
people will take balls will be lost always. कभी ना कभी कोई ना कोई आपकी चीजें ले लेगा, या आपको लोगों को देनी पड़ेगी, या फिर आपकी चीजें गुम हो जाएगी। यहाँ पे बॉल इज लाइक ए सिंबॉलिक, ये थिंग्स, ये चीजों को दर्शा रही है कि आपकी चीजें या तो लोग ले लेंगे, या आपको लोगों को देनी पड़ेगी, या वो गुम हो जाएगी, वो खराब हो जाएगी, वो आपसे दूर हो जाएगी। लिटिल बॉय, ये सब तो दुनिया में चलता रहेगा। एंड नो वन बाइज अ बॉल बैक। और अगर वो गुम हो जाती है या फिर उसे कोई ले लेता है या हम दे देते, कोई नहीं खरीदता दोबारा। क्यों? नोबडी बाइज अ बॉल बैक। मनी इज एक्सटर्नल, मनी इज वेरी इंपॉर्टेंट, लेकिन मनी एक्सटर्नल है। मनी वो चीज नहीं खरीद सकती। क्यों? क्योंकि ये जो बॉल सिंबॉलिक है, इट हैज गॉट अटैचमेंट, इट हैज गॉट अटैचमेंट्स। कोई नहीं खरीदेगा, क्योंकि वो फीलिंग, वो अटैचमेंट उस चीज के साथ जो हमारा है वो दोबारा नहीं आएगा। ये रिस्पॉन्सिबिलिटी आपको सीखनी पड़ेगी कि यू शुड बी रिस्पॉन्सिबल रिगार्डिंग योर थिंग्स। नाउ व्हाट ही इज लर्निंग, वो और भी कुछ सीख रहे हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, इज लर्निंग वेल बिहाइंड हिज डेस्परेट आईज। डेस्परेट का मतलब तो किसी चीज को पाने के लिए हम बहुत ज्यादा एक्साइटेड होते हैं, मुझे ये चीज चाहिए, जैसे मैं ये चीज लेना चाहता हूँ, उसको बोलते हैं डेस्परेट। तो उसकी आंखें डेस्परेट है, वो खड़ा है, उसको पता है बॉल पानी में जा चुकी है, ही स्टिफ, बट स्टिल उसकी आंखों में काश में वो बॉल वापस मिल जाए। लेकिन उन आंखों के पीछे वो कुछ सीख रहा है, उसके दिमाग में कुछ चल रहा है। एंड व्हाट इज लर्निंग? द एपिस्टेमोलॉजी ऑफ लॉस। If you go to the meaning of epistemology, is knowledge. वो सीख रहे हैं, क्या सीख रहे हैं? लॉस क्या होता है, किसी चीज को खोने का एहसास क्या होता है, वो इस नॉलेज को सीख रहा है। एंड हाउ टू स्टैंड अप, हाउ टू स्टैंड अप, यहाँ पे खड़े होने की बात नहीं है। हाउ टू स्टैंड अप मतलब कि उस लॉस को, उस पेन को, उस दर्द को कैसे सहा जाए। Once again, is learning well behind his desperate eyes. उसके आंखों में desperate है, is desperate to get the ball back, but is learning a lesson, and that lesson is epistemology of loss. Loss की नॉलेज ले रहे हो कि क्या होता है किसी चीज का गुम होना या किसी चीज का खो जाना, और फिर उस चीज को सहना कैसे होता है, मूव ऑन कैसे करना लाइफ में। हमारी कोई भी चीज गुम हो जाती है या हमसे दूर हो जाती है, हम कुछ टाइम के लिए बहुत दुखी हो जाते हैं, बट विद द ग्रेजुअली विद द पैसेज ऑफ टाइम वी ओवरकम दैट थिंग एंड वी मूव ऑन विद आवर लाइफ। इवन हमारे कोई रिलेटिव एक्सपायर हो जाए या फैमिली में कोई डेथ हो जाए, कुछ सालों तक हम बहुत ज़्यादा दुखी होते हैं, लेकिन ग्रेजुअली हमें हमारी लाइफ जीनी पड़ती है। वी हैव टू लीव, वी हैव टू मूव ऑन विद द लाइफ, वी कांट स्टॉप देयर। द सेम थिंग इज लर्निंग लॉस एंड हाउ टू स्टैंड अप, उसको कैसे सहा जाए। नोइंग व्हाट एवरी मैन मस्ट वन डे नो, वो सीख रहा है, इज नोइंग क्या, व्हाट एवरी मैन मस्ट वन डे नो। हर इंसान को कभी ना कभी ये चीज सीखने को मिली है कि लॉस क्या होता है। हर इंसान ने ये एक्सपीरियंस किया है, हर इंसान अपने लाइफ में ये चीज सीख जाता है कि चीजों को गुम करना, चीजों से बिछड़ना और उससे सहन करना कैसे है। एंड मोस्ट नो मेनी डेज हाउ टू स्टैंड अप। और लाइफ में धीरे धीरे करके कई लोग सीख जाते हैं हमारे लाइफ के एक्सपीरियंस से, विद दिस मोस्ट इंसिडेंट ऑफ आवर लाइफ, कि हम चीजों को गुम होती है, हमसे दूर होती है, तो वो लॉस कैसा होता है, हमें उस लॉस को सहना पड़ेगा, हमें उस लाइफ को आगे चलना है, मूव ऑन करना है, एंड उसको सहते हुए रहना है, हमें हमारी जिंदगी जीनी है। सो इन दिस पोएम द पोएट जॉन पेरीमैन हैज वेरी वेरी ब्यूटिफुली एक्सप्लेन द थिंग्स which we all requires in our life. The responsibility to take care of your belongings,
सेकेंडली द नॉलेज ऑफ लॉस, कि आपकी चीजें गुम होगी, आपसे लोग बिछड़ेंगे, लेकिन यू हैव टू स्टैंड अप विद दिस थिंग्स। आपको ये चीज सहनी करनी पड़ेगी, सहन करेंगे तभी हम आगे बढ़ेंगे। वेल, दिस वाज द पोएम द बॉल पोएम बाय जॉन बेरीमैन, and in my coming videos we'll discuss about the question and answers about this poem. Thank you for watching the video.